بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، ماں باپ کے ذمے اولاد کے کیا حقوق ہیں، بات اسی پہ ہو رہی تھی تو چند حقوق آپ کے سامنے آئے تھے۔ نمبر 1، پیدا ہوتے ہی پہلے اذان کے کلمات بچوں کے کان میں جانے چاہیے۔ نمبر 2، تہنیک کرائی جائے نیک لوگوں سے، یعنی گٹی دلائی جائے نیک لوگوں سے۔ نمبر 3، ان کا عقیقہ کیا جائے۔ نمبر 4، ان کا خوبصورت سا نام رکھا جائے۔ نمبر 4 میں ہی یہ ساری باتیں آ گئی کہ عقیقے میں لڑکا اور لڑکا دونوں کی طرف سے کیا جائے گا۔ اسلام فرق نہیں کرتا ہے، دونوں کو اہمیت دیتا ہے۔ بیٹیوں کی عزت بیٹوں سے کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ اور اس پہ بہت سی باتیں اور حدیثیں بھی آپ کے سامنے آئی کہ بیٹیوں کی جو پرورش کرے گا تو اسے کیا ملے گا۔ حالانکہ بیٹوں کے پرورش پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں تھا، لیکن بیٹیوں کی طرف سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے وعدہ فرمایا۔ 5ویں بات ختنہ کی رہ گئی تھی تو 7ویں دن ختنہ بھی کرایا جائے۔ ختنہ جس کو دوسرے لفظوں میں مسلمانی بھی بولتے ہیں، سنت کرانا بھی بولتے ہیں، یہ بھی کرایا جائے، یہ بھی سنت میں سے ہے۔ اگر 7ویں دن نہ کرائیں تو بعد میں بھی کرا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے ختنہ کرا دیا جائے۔ بالغ ہونے کے بعد بھی کرایا جا سکتا ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد سطر کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ سطر بن جاتا ہے، جس کا کھلنا حرام ہوتا ہے۔ اس لیے بالغ ہونے سے پہلے ختنہ کرا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم 80 سال کی عمر میں ہوا تھا ختنے کا، آپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا ختنہ کیا تھا۔ تو اس لیے بلوغت کے بعد بھی، بالغ ہونے کے بعد بھی ختنہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بالغ ہونے سے پہلے کر لیا جائے۔ اگر کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے تو جس وقت اسلام لائے گا اسی وقت ختنہ کرائے گا وہ۔ تو یہ ختنہ کا مسئلہ ہے۔ پھر عقیقہ کرنے کے بعد یہ بات آئی تھی کہ بال کو تراش کر کے، بال کو وزن کر کے اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دیا جائے، بال کو دفن کر دیا جائے، کسی جگہ پاک جگہ پہ دفن کر دیا جائے، پھینکا نہ جائے۔ عام حالات میں بھی ناخن، بال ہیں جو ہم کاٹتے ہیں، یہ ہمارا حصہ ہے، اس کی عزت، جیسے ہم عزت کر رہے ہیں نا بالوں کی اپنی، تو کٹنے کے بعد بھی عزت ہے۔ جیسے ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی ہمارے مردوں کی عزت ہے۔ تو یہ بال کٹنے کے بعد، ناخن کٹنے کے بعد یہ ہمارا حصہ ہے، تو یہ کاٹنے کے بعد بھلے مر جاتے ہیں لیکن ان کی عزت پھر بھی ہے، اس لیے انہیں دفنایا جائے، پھینکا نہ جائے، پاک جگہ پہ ہی ڈالا جائے۔
फिर आई थी बात नाम रखने की। अच्छा नाम रखा जाए, बेहतर ये है कि अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे नाम पे नाम रखा जाए, और अल्लाह को के नाम पे नाम रखना अल्लाह को बड़ा पसंद भी है, जिसमें से हदीस मुबारक में 2 नाम आए थे, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान। यहाँ तक कि मोहम्मद नाम भी बड़ा पसंदीदा है, मोहम्मद नाम भी रखा जाए। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाएंगे, कहेंगे या मोहम्मद, तो उस वक्त मोहम्मद नाम के जितने लोग होंगे वो सब दौड़ पड़ेंगे। अल्लाह फरमाएंगे हमने तो अपने मोहम्मद हबीब को बुलाया है, तुम्हें तो नहीं बुलाया। वर्ष करेंगे कि या अल्लाह नाम मेरा भी था मोहम्मद, तो हम चले आए, सोचा कि हमें आपने बुलाया है, तो अल्लाह कहेंगे चलो तू भी चला जा जन्नत में। तो मोहम्मद नाम भी रखना चाहिए। मोहम्मद नाम प्यारा नाम है, और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे ये नाम है। अहमद भी प्यारा नाम है, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 2 नाम हैं, और भी सिफाती नाम है, लेकिन ख़ास तौर से जो नाम रखे गए और किताबों में आए वो ये 2 नाम हैं। और अल्लाह के और भी सिफाती नाम है, और भी बहुत सारे नाम हैं, जिसमें से अल्लाह और रहमान ये बेहतर नाम है अल्लाह का सबसे, इसलिए इन नामों पे नाम रखा जाए। अब बच्चा आगे बढ़ेगा, अब 7 दिन से आगे बढ़ेगा, यहाँ तक कि वो साल भर के करीब पहुँचेगा, तो अब बोलना शुरू करेगा। तो अब क्या हुक्म है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इफ्तहू अला सिबियानिकुम अव्वला कलिमतिन बिला इलाहा इल्लल्लाह, कि पहला कलमा जिससे बच्चा शुरू करे बोलना, तो तुम उसे सिखाओ ला इलाहा इल्लल्लाह, वलक़िनूहुम इंदल मौति ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब मौत के करीब हो जाए तो भी उन्हें सिखाओ क्या? तलकीन करो ला इलाहा इल्लल्लाह। हम करते हैं ना, मरने के वक्त सभी लोग करते हैं, पढ़ते हैं, अपना पढ़ना है, मैयत सुन के पढ़ना शुरू कर दे और इसी पे उसका ख़ात्मा हो जाए। तो शुरू और आखिरी दोनों में ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया जाए। हम ये समझते हैं कि ये भारी कलमा ये बच्चा कैसे सीखेगा, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। मेरी बच्ची 10 महीने की है, अल्लाह अल्लाह बोलती है, और मैं कह नहीं रहा, मेरी बच्ची यही है, आपको सुना दूंगा कि अल्लाह अल्लाह मेरी बच्ची कैसे बोल रही है, वीडियो आपको सुना दूंगा मैं। कैसे हुआ ऐसे कि उसकी माँ भी और मैं भी जब भी बैठते हैं तो उसका हाथ ऐसे ले लेंगे और बैठ करके खुद बोलते हैं हम अल्लाह 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 जी अल्लाह, खुद बोलते हैं, खूब बोलते हैं, यहाँ तक कि मेरी बच्ची बोलने लगी है और अल्लाह अल्लाह बोलते हैं। ये बच्चे मदरसे के बच्चे सुने हुए हैं। तो ये मुश्किल नहीं है जिसे हम मुश्किल समझते हैं, मुश्किल नहीं है, बच्चे सीखते हैं। और आज साइंटिफिकट भी ये बात है कि पहले मर्तबा बच्चे के कान में जो आवाज़ पड़ती है उसका असर होता है, ये साइंस भी कहती है। इसलिए बेहतर कलिमा होना चाहिए ताकि बच्चा को पता चले कि मैं ग़ुलामी में मोहम्मद के जा रहा हूँ, मैं ग़ुलामी में अल्लाह के जा रहा हूँ, किसी और की ग़ुलामी नहीं। वो ये पढ़ के सीख लेगा, इसलिए ये करें। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक तरतीब बताई है जो मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ। फिर आगे चलें, अब बच्चा ये आगे चलेगा, यहाँ तक कि उम्र बढ़ेगी, 5 साल 7 साल का होगा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? अमर बिन शुएब अपने दादा से नकल करते हैं रज़ी अल्लाह ताला, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह, कि अपनी औलाद को नमाज का हुक्म करो, वहुम अबनाउ सबईन, जबकि वो 7 साल का हो जाए, वज़रिबूहुम अलैहा, और इस बच्चे को मारो, वहुम अबनाउ 10 सिनीन, यहाँ तक कि वो बच्चा 10 साल का हो जाए, वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिअ, और बिस्तरों को अलग कर दो। कितना वाज़ेह, कितने अच्छे अल्फाज में समझा समझा के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म करो। चूँकि 7 साल की उम्र में बच्चा इस काबिल हो जाता है कि समझने लगे, कुछ हो जाता है, वो समझने लगता है, अब उसे नमाज का हुक्म किया जाए।
नमाज के लिए लाया जाए, खुद भी नमाज़ पढ़े, माँ भी नमाज़ पढ़ रही है, बगल में खड़ा कर ले। तरबियत, ये 7 साल में तरबियत अब शुरू हो रही है बच्चे की। बताई थी ना कि अगर कोई अपने बच्चे को का अच्छा नाम रख देता है, अच्छी तालीम देता है और अच्छे घराने में शादी करता है, तो मैं मोहम्मद उसके जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। तो वो इसी बेस पे तो है कि अच्छी तालीम भी होनी चाहिए। तो यहाँ से शुरू होती है, नमाज का हुक्म किया जाए उसे, ठीक है चलेगा। 3 साल वो तरबियत में चलेगा इस तरीके से बहला फुसला के। 10 साल का जब होगा, अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अब नहीं पढ़ता, अब सुस्ती अगर करता है तो वज़रिबूहुम अलैहि, या पिटाई करो। फिर हम कहते हैं कि मार नहीं प्यार चाहिए। अल्लाह के नबी कहते हैं कि ना पढ़े तो अब प्यार नहीं, अब मार चाहिए। उस्ताद की पिटाई मोहब्बत होती है, वालिदैन की पिटाई में मोहब्बत होती है, उसमें दुश्मनी नहीं होती। उसमें आदत, बिगड़ी आदत को सुधारना होता है और अच्छी आदत हो तो चलाना होता है उसे तरबियत कहते हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं 10 साल की उम्र हो जाए, बच्चा नहीं जा रहा तो उसे पीटो। और यहाँ तक क्या है कि कूड़ा उड़ा हो तो सामने लटका के रखो ताकि बच्चा देखे कि ये नहीं जाएंगे तो ये पढ़ेगा, मस्जिद चला आएगा। वो नमाज छूट जाए तो फ़ौरन आकर पढ़ लेगा घर पे कम से कम। तो ये तरबियत का अंदाज़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो उम्मत को दे रहे हैं कि ये तरतीब है, इस तरतीब से अपने बच्चे को संवारो। अब बताएं कि अगर हम इस तरतीब से अपने बच्चे को संवारते हैं तो क्या हमारा बच्चा सुधरेगा नहीं? क्या हमारा बच्चा सीखेगा नहीं? क्या हमारा बच्चा अच्छे रास्ते पे जाएगा नहीं? क्या वो दीन नहीं सीखेगा? क्या वो अच्छाई का रास्ता नहीं इख्तियार करेगा? यकीनन करेगा, वो ज़रूर करेगा, बस हम करके देखें। यहाँ तो है ये कि बच्चा 10 साल का हो गया, अब उसे खुद कहें वालिदैन जाने के लिए, तो भाई हम तो खुद नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हम कैसे कहें? कहीं कह दिया बेटा कि पापा आप तो खुद नहीं पढ़ते, तो हो गया काम बन जाएगा, फिर जवाब कुछ नहीं बनता। इसलिए अव्वलन आप खुद पढ़ें। आप 10 साल का तो नहीं है, हम 10 साल के नहीं ना जी, हम तो 40 साल के हैं, हम तो 50 साल के हैं, 30 साल के हैं, 20 साल के हैं। वहाँ तो 10 साल पर डंडा था और यहाँ 20 साल पे क्या होना चाहिए? फिर कुछ तो होना चाहिए। तो है, सब है, बस ये है कि हमारे ऊपर गार्जियन नहीं। अगर हुकूमत होती ना इस्लामी, फिर हमारे ऊपर भी डंडा था, लेकिन है नहीं। तो फिर हमें हिसाब अल्लाह को देना है, अल्लाह को हिसाब देना है। फिर डंडे अल्लाह के पास हैं, इसलिए हम उन डंडे को ना देखें। अल्लाह ने हमें जिस मकसद के लिए भेजा उस मकसद को भी पूरा करें। उस पर बात बाद में होगी, मकसद से अलग हट जाएगा आदमी। देखें और आगे, जब 10 साल का हो जाए तो पिटाई करो, नमाज नहीं पढ़ रहा। और आगे अल्लाह के नबी कहते हैं कि बिस्तरों को अलग कर दो। अब लड़का है तो भी बिस्तर को अलग किया जाए, लड़का लड़की है तो भी बिस्तर को अलग किया जाए। 10 साल के बाद अब वो उम्र आती है जिसमें बच्चा बालिग होता है, जिसमें बच्चे के ख्वाहिशात उभरते हैं, जिसमें बच्चे के अंदर फीलिंग जागती है। अब इस्लाम ये कहता है कि अब इनके बिस्तर अलग करो, अलग अलग सबको सुलाओ। ये बहुत बेहतरीन इस्लाम का दिया हुआ बहुत बेहतरीन उसूल है। अब बच्चे को अलग करेंगे, बिस्तरा अलग करेंगे, सभी कोशिश करेंगे कि अलग अलग बिस्तर हो। और अगर चूँकि घर किसी के पास तंग होता है, किसी के पास घर छोटा है ही नहीं, तो कम से कम एक एक हाथ का फासला करके बिस्तरा अलग अलग करें। बेड अलग अलग नहीं तो बिस्तरा ज़रूर अलग अलग करें। इस तरीके से वो बचपने में सीख जाएगा कि शरीयत क्या है, वो सीख जाएगा वो देख करके उसी चीज़ को। और इससे फितने कम होते हैं, बुराइयाँ कम होती हैं, बुराई की तरफ रुझान नहीं बढ़ता है। ये मुआशरे को एक अच्छे रास्ते की तरफ ले जाने का तरीका है। और आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब उसे किताबत सिखाओ। किताबत कहते हैं लिखने को, उसे किताबत सिखाओ, लिखना सिखाओ। ज़िंदगी में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, लिखा पड़ेगी। कहीं भी आप जाएंगे तो इसकी ज़रूरत है, इसलिए किताबत सीखनी चाहिए।
लिखना सीखना चाहिए। और आए कहते हैं कि फिर उसे सयाह भी सिखाओ, यानी तैरना। भले मुझे नहीं आता, मैंने बहुत कोशिश की, मुझे नहीं आया, लेकिन तैरना एक बहुत बेहतरीन फ़न है और बहुत मौके पे काम आता है, ये बड़े बड़े मौके पे काम आ जाता है, तैरना सीखो। उसके बाद फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अब उसे तीर चलाना भी सिखाओ। अब उसे तीर चलाना यानी लड़ाई की महारत भी सिखाओ, इसकी भी ज़रूरत है। और आजकल तो क्या बैंड है, वरना फिर वो भी सीखना चाहिए, जो सीखने की ज़रूरत है। हालांकि सिखाया भी जाता है, आप जाएँ तो क्लब में सिखाया भी जाता है, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। सीखना चाहिए, हर एक को सीखना चाहिए, ये सुन्नत भी है सीखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े प्यार से मस्जिद में इसको सिखाया करते और बजाबता इसका मुकाबला कराया करते थे मस्जिद में। आप बड़े बड़े पहलवान होते थे और उसमें तीरंदाज होते थे, बड़ा सा मेला लग जाता था, यूँ सिखाते थे, सहाबाए कराम को ट्रेनिंग होती थी। इसलिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। अब आखिरी मरहला पहुंचता है और आखिरी ज़िम्मेदारी पहुंचती है माँ बाप की, जो कि बच जाती है शादी और निकाह एक बच जाता है। ये सारे काम आप कर लें, आप ज़िम्मेदारी से बरी हो जाते हैं। नंबर 1 अज़ान देनी है, नंबर 2 अकीका करना है, नंबर 2 तहनीक करानी है, नंबर 3 अकीका करना है, नंबर 4 खतना करना है, नंबर 5 नाम रखने हैं और नंबर 6 नमाज का हुक्म करना है, न पढ़े तो मारना है, नंबर 8 बिस्तरों को अलग करना है और नंबर 9 बकी आगे की तालीम जो भी है उसे दे करके उसे परवान चढ़ाना है, नंबर 10 शादी करके अपनी ज़िम्मेदारी से बरी हो जानी है। ये वालिदैन के ऊपर 10 ज़िम्मेदारियाँ जिसे मैंने अलग अलग किया है, इसे मिलाएंगे तो 2-3 में भी समेट सकते हैं आप, 2-3 में भी समेट सकते हैं, मतलब बचपने का बिल्कुल, और एक होशियार होने के बाद की ज़िम्मेदारी और एक आखिरी ज़िम्मेदारी निकाह की, 3 में भी समेट सकते हैं। अलग अलग करें तो 10 ज़िम्मेदारियाँ आपकी बनती हैं। अगर आप 10 ज़िम्मेदारी अदा कर देते हैं और हुकूक अदा कर देते हैं 10, तो उम्मीद है कि आपकी औलाद नाफरमान नहीं होगी, वो आपका फरमाबरदार औलाद होगी और खिदमत गुजार औलाद होगी और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह खुद भी जन्नत में जाएगी और साथ में आपको भी लेके जाएगी। ये 10 जिम्मेदारियाँ। रही बात निकाह की तो तफसील के साथ आपके सामने इस पे पूरा बयान आएगा। अल्लाह तबारक व ताला हम सब गार्जियंस को इन 10 पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।